संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम नमः श्री वासुदेवाय सच्चिदानन्दमूर्तये एकायनत्रयीं यस्ताम् उपासिक्षत् श्रियै प्रभुः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं बुष्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओं तत्सत्। श्री गोविन्द 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 अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे षष्ठ्यां शुभतिथौ इंदुवासरयुक्तायां रोहिणी नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायां अस्यां षष्ठ्यां शुभतिथौ श्री भगवतः श्री वासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्री वासुदेव प्रीत्यर्थम अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री भूमनीला पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः प्रीत्यर्थम वैवाहिक महोत्सव कर्मणि कल्याणोत्सवानिकि समर्पिंచుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రం మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్ర రాశిని మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఓం శ్రీ పద్మావతీ దేవ్యై నమః. లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగదామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకైక దీపాంకురాం శ్రీమన్మంత కడాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య குடும்பினீம் சரசிஜாம் வந்தே முக்குந்த பிரியாம். பக்தர்களே, முக்குந்த பிரியலான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார் க்ஷீர சமுத்திரத்தில் பார்க்கடலில் தோன்றியவள். அந்த தாயாரின் ஸ்வரூபமே இதோ இந்த திருச்சானூரில் பத்மசரோவரில் அவதாரமான ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். சந்திராம் சந்திர சகோதரி. பார்க்கடலில் தேவி உதயமாகும் போது கூடவே உதயமானவன் சந்திரன். அந்த சந்திரனுக்கு உகந்த நாள் இன்று திங்கட்கிழமை, இந்துவாசரை என்பார்கள். இந்த சமயத்தில் அவளது சகோதரியான தாயாரின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். பக்தர்களே, அந்த தாயாருக்கு வாழ்த்து பாடும் உரிமையும் பக்தர்களாகிய நமக்கு உண்டு. ஆகவே 8 சொரூபங்களாக அவளை நாம் வாழ்த்துவோம். ஆதி லக்ஷ்மியே வாழி, தனலக்ஷ்மியே வாழி, தானிய லக்ஷ்மியே வாழி, வித்யாலக்ஷ்மியே வாழி, வீரலக்ஷ்மியே வாழி, விஜயலக்ஷ்மியே வாழி, காருண்ய லக்ஷ்மியே வாழி, சந்தான லக்ஷ்மியே வாழி, மொத்தத்தில் சௌபாகிய லக்ஷ்மியே வாழி வாழி என்று வாழ்த்து பாடுவோம். வேண்டிய வரம் தரும் ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாளையும் தாயாரோடு சேர்த்து ஒரு சேர தியானித்துக் கொள்வோம். பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் முதலில் நடைபெற்றது சங்கல்பம்.
இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் யாவரும் அந்த சுவாமி சொற்படி சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். இதைத் தொடர்ந்து இனி நடைபெற இருப்பது கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், பின்பு புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம். இவற்றை ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி ஒவ்வொன்றாக இப்போது அர்ச்சக சுவாமி செய்ய உள்ளார். அதை இப்போது நாம் இந்த திரையின் வழியாக தரிசிக்க இருக்கிறோம். இன்றைய வர்ணனையை செய்வது டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ணசுவாமி. பக்தர்களே, லக்ஷ்மி என்கிற பதத்துக்கு இலக்கண ரீதியாக பல அருட்சக்திகள் உண்டு. ஞானம், ஐஸ்வர்யம், சுகம், ஆரோக்கியம், தனம், தானியம், ஜெயம், இவற்றுடன் அனிமா, மகிமா, கரிமா, லஹிமா, பிராகாமியம், ஈசித்துவம், வசித்துவம் ஆகிய அஷ்ட மகா சித்திகளும் சேர்ந்து 16 பேறுகளாக கூறப்படுகின்றன. இவை அனைத்தையும் நமக்கு வழங்குபவள் செல்வத்தின் அரசியான ஸ்ரீ இதோ இந்த பத்மாவதி தாயார். தூர்வாச முனிவரின் சாபத்துக்கு ஆளாகி சகல செல்வங்களையும் இழந்த தேவேந்திரன் தனது தேவர்களோடு ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை துதித்து தாயாரின் கடாட்சத்தை பெற்று மீண்டும் தன்னுடைய சம்பத்துகளை பெற்றதாக ஸ்ரீ தேவி பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நமஸ்தேத்து மகாமாயே ஸ்ரீபீட்டே சுரபூஜிதே சங்கச்சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமஸ்துதே நமஸ்தே கருடாரூடே கோலாசுர பயங்கரி சர்வபாப ஹரே தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று துதித்துப்படி நாமும் தாயாரை வணங்கிக் கொண்டே இதோ இப்போது தாயாருக்கு நடைபெறும் இந்த திருக்கல்யாண நிகழ்வுகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்போது நாம் கவனிப்போம். தேவி தேவி பரஜானம், தேவி தேஹி பரம் சுகம், தனம் தேஹி யச்சோ தேஹி பிரசீத ஹரிவல்லபே. பக்தர்களே, ராமாயண காவியத்தை வால்மீகி மகரிஷி எழுதியிருந்தாலும் காலப்போக்கில் எத்தனையோ மொழிகளில் எத்தனையோ பண்டிதர்கள் அந்த ராமாயணத்தை மூலமாக கொண்டு எழுதியுள்ளார்கள். அவர்கள் செவிகளில் கேட்டதையும் தங்கள் கற்பனைகளை சேர்த்தும் சுவையான செய்திகளை நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள். அதில் ஒன்றுதான் இப்போது நாம் கூறப்போகும் விஷயம். ராவணேஸ்வரன் கானகத்தில் சீதா பிராட்டியை கவர்ந்து சென்றபோது ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் இன்னொரு அம்சமான வேதவதி சீதாதேவிக்கு பதிலாக அசோகவனத்தில் சிறை இருந்ததாகவும் முடிவில் ராவணாதியர் மாண்ட பின்னர் சீதாதேவி தூய்மையானவள் என்று நிரூபிக்க அக்னி பரீட்சை வைத்தபோது அந்த தீயில் இந்த வேதவதி புகுந்து பின்பு ஜனகரின் மகளான ஜானகி தேவி வெளியில் வந்ததாக அபூர்வ ராமாயணத்தில் வருகிறது. அப்போது வேதவதி செய்த உபகாரத்துக்காக சீதாதேவி ஸ்ரீராமனிடம் அவளையும் மனம் புரிந்து கொள்ள சொன்னபோது ராமபிரான், இந்த அவதாரத்தில் நான் ஏக பத்னி விரதன், ஒரு தாரம், ஒரு பானம், ஒரு சொல் என்பது என் கொள்கை. ஆகவே கலியுகத்தில் நான் சீனிவாசனாக அவதரிக்கும் போது இந்த வேதவதி பத்மசரோவரில் தோன்றி ஆகாசராஜனின் வளர்ப்பு மகள் பத்மாவதி தேவியாக வந்து என்னை மனம் புரிந்து கொள்வாள் என்று உரைத்ததாக புராணம் கூறுகிறது. பக்தர்களே, ஆகவே ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் இன்னொரு அம்சமான இந்த ஸ்ரீ பத்மாவதி எனும் அலர்மேல் மங்கை தாயாருக்கு அவளது மணாளரான சீனிவாச பெருமானும் நடைபெறும் நித்திய கல்யாணம் இது. நாராயணவனத்தில் சீனிவாசர் பத்மாவதி பரிணயத்தை காண நமக்கு கொடுத்து வைக்காமல் போயிருக்கலாம். ஆனால் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலமாக தினந்தோறும் இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். அதற்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது. இப்போது தாயாருக்கு உள்ள காரண பெயர்களை கூட நாம் பார்க்கலாம். ஜனக மகாராஜனுக்கு மகளானதால் அவள் ஜானகி, பூமியின் கலப்பையின் நுனியிலிருந்து வெளிப்பட்டதால் சீதை என்று போற்றப்பட்டதாக ராமாயணம் கூறுகிறது. மாதுளம் கனியிலிருந்து உதித்ததால் அவள் மாத்துளாங்கி, பத்மத்தில் அமர்ந்ததால் அவள் பத்மா, அக்னிகுண்டத்தில் வாசம் செய்வதால் அக்னி கர்ப்பை, ரத்தின வடிவம் பெற்றதால் ரத்னாவதி, இப்படி எத்தனையோ காரண பெயர்கள். நமது தாயார் பத்ம சரோவரில்
அழகான தாமரையின் மீது அவதரித்ததால் பத்மாவதி என்று போற்றப்படுகிறாள். இதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியை வைகுண்டத்தில் ரமாதேவி என்றும், ஸ்வர்க்கத்தில் ஸ்வர்கலக்ஷ்மி என்றும், பாதாள லோகத்தில் நாகலக்ஷ்மி என்றும், ராஜாக்களிடத்தில் ராஜலக்ஷ்மியாகவும் விளங்குகிறாளாம். அந்த தாயார் எங்கிருக்கிறாள் என்பது நமக்கெல்லாம் தெரிந்த விஷயமே. இருந்தாலும் நெல்லி மரம் இருக்கும் இல்லங்களில் மகாலட்சுமி நிரந்தரமாக வாசம் புரிவாளாம். அதே போல துளசி செடியிலும் மஞ்சள் செடியிலும் இருப்பதால் துளசியோடு சேர்த்து மஞ்சள் செடியையும் வைக்கிறார்கள். நமது இல்லங்களில் அது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பூரண கும்பம், மஞ்சள், குங்குமம், திருமண் ஸ்ரீசூர்ணம், மாக்கோலம், சந்தனம், மாவிலை தோரணம், வெற்றிலை, தீபம், யானை, பசு, கண்ணாடி, உள்ளங்கை ஆகிய மங்கள பொருட்களில் லக்ஷ்மி குடியிருக்கிறாளாம். ध्रुवक्षेदर्ध्रुवयो न ध्रुवासे ध्रुवञ्जो निमासे दसाधुया उख्यस्य केतुं प्रथमं पदमं ध्रुवक्षेदर्ध्रुवयो न ध्रुवासे ध्रुवञ्जो निमासे दसाधुया उख्यस्य केतुं प्रथमं पुरुत्रात् कुलायिने कृतपदे पुरं दिश्योनसे दशदन पृथिव्याः भित्त्वा रुद्रावसवो गृणन्ति मां ब्रह्मतेपिः सौभगायाश्विनाः ध्वर्यो साधयत निहत्वा स्वैर्दक्षैर्दक्षापितेहसे तदेवानाज्ञ सुम्न बृहतिरुणाय पितवेदिसो नवासुषेवा अश्वाभेषा तन्वा संवेशश्वाश्विना ध्वर्यो साधयतामिहत्वा पृथिव्या पुरेशमस्यप्सो नामतां त्वा विश्वे अभिगृह्णन्तु देवाः स्तोमा पृष्ठा घृतवदेहसे प्रजावदस्मै द्रविणाय जस्वाश्विना ध्वर्यो साधयतामिहत्वा आदित्यास्त्वा पृष्ठे साधयाम्यन्तरिक्षस्य धर्त्रीं विष्टं बाणीं दिशामधिपत्नीं भुवनानाम्
ओर्म्यद्रप्सो अपामासि विश्वकर्मातर्षेरश्विना ध्वर्यो साधयतामिह त्वा शुक्रश्च शुचश्च ग्रैष्माः ऋतो अग्निरुन्दश्लेषसे कल्पेतां यावा पृथिवी कल्पं दामाप ओषधयः कल्पं दामग्नयः पृथङ् ज्येष्ठ्याय सौव्राताः ये अग्नयः समानसों दराद्या वा पृथिवी इमे हैमन्तिकारतो शुक्रश्च ग्रैष्मा ऋतो अभिकल्पमाना इन्द्रामिव देवा अभिसंवेशन्तु तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवे से दतम् सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्देवैः सजोर्देवैर्वायो नाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना ध्वर्यो साधयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोरुद्रैः सजोर्देवैर्वायो नाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना ध्वर्यो साधयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोरादित्यैः सजोर्देवैर्वायो नाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना ध्वर्यो साधयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्विश्वैर्देवैः सजोर्देवैर्वायो नाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना ध्वर्यो साधयतामिह त्वा प्राणं मे बाह्यपानं मे बाह्यव्यानं मे बाह्ये चक्षुर्म उर्व्या विभाहे श्रोत्रं मे श्लोकया अपपिन्वौषाधेर्जन्वद्विपादवचतुष्पात् पाहि दिवोवृष्टिमेरया मूर्धावय प्रजापतिश्छन्द क्षत्रं वयोमयं दन्छन्दाः विष्टम्भो वयोधिपतिश्छन्दो विश्वकर्मा वयः परमेष्टे छन्दाः वस्त्वावयो विमलं छन्दो वृष्णर्वयो विशालं छन्दः पुरुषो वयस्तन्द्रं छन्दो व्याघ्रो वयो नादृष्टं छन्दः सिंहो वयश्चतिश्छन्दः पष्ठवाड्वयो बृहते छन्दः उक्षावयः ककुप्छन्दा ऋषभो वयः सतो बृहते छन्दः अनाड्वान्वयः पङ्क्तिश्छन्दो धेनुर्वयो जगते छन्दः त्रविर्वयस्तृष्टुप्छन्दो आदित्यवाड्वयो विराट् छन्दः पञ्चाविर्वयो गायत्रे छन्दत्र वत्सवय उष्णच्छन्दः तुर्यवाड्वयो नुष्टुप्छन्दो लोकं प्रणता अस्येन्द्रं विश्वाः इन्द्राग्ने अव्याधमानामिष्टागान्द्रज्ञाहतं युवम् पृष्ठे नद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं च विबोधसे
विश्वकर्मा त्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रधस्वतीम् अन्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षं द्रगृणः अन्तरिक्षं माहिज्ञसे विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय दानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय वायोष्ट्वाभिपादमह्या स्वस्त्याच्छर्दिषा सन्तमेनतया देवतायाङ्गिरस्व ध्रुवासेदा राज्ञास्य प्राचेदिग्विराळस्य दक्षिणादिक्सम्राळस्य प्रतेचेदिक्स्वराळ सुदेचेदिगधे पत्न्यस्य बृहते दिक् विश्वकर्मा त्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मते विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छा वायुष्टेधिपतिस्तया देवतायाङ्गिरस्मध्रुवासेदा नभश्च नभस्यश्च वार्षिकार्तो अग्निरन्दश्लेषोऽसे कल्पेधान्यवा पृथिवी कल्पं दामाप ओषधयः कल्पं दामग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठ्याय सौरथाः ये अग्नयः समानसां दराद्या वा पृथिवी इमे वार्षिकारतो अभिकल्पमाना इन्द्रामिव देव अभिसंवेशन्ततया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवेशे दतम् ईशश्चोर्जश्च शारदारतो अग्निरन्दश्लेषोऽसे कल्पेतां यवा पृथिवी कल्पं दामाप ओषधयः कल्पं दामग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठ्याय सौरथाः ये अग्नयः समानसां दराद्या वा पृथिवी इमे शारदार्तो अभिकल्पमाना इन्द्रामिव देवा अभिसंवेशन्ततया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवेशे दतम् आयुर्मे पाहि प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षुर्मे पाहि श्रोत्रं मे पाहि वाचं मे पिण्डमनो मे जन्म पानं मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छा माच्छन्द प्रमाच्छन्द प्रतिमाच्छन्द अस्त्रेवयच्छन्दः पङ्क्तिच्छन्द उष्णच्छन्दः बृहते छन्दो अनुष्टुप्छन्दो विराट्छन्दो गायत्रे छन्दः पृष्ठुप्छन्दो जगते छन्दः पृथिवी छन्दोऽन्तरिक्षं छन्दोऽद्योश्छन्दः समाश्छन्दः नक्षत्राणि छन्दो वाक्छन्दः मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो हिरण्यं छन्दो गौश्छन्दः अजाश्छन्दो श्वश्छन्दः अग्निर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता
आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता इन्द्रो देवता वरुणो देवता मूर्धासिराड्ध्रुवासि धरुणा धत्रियासि धरणी आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा यन्त्रिराड्यन्त्रियासि यमाने ध्रुवासि धरित्रे षेत्वार्ये त्वा आरये त्वा पोषाय त्वा लोकं प्रणता अस्येन्द्रं विश्वाः आशस्त्रवृद्धान्तः पञ्चदशो व्योमा सप्तदशो धरुण एकविघ्नशप्रतोर्तिरष्टादशः तपो नवदशोऽभिवर्तः स विघ्नसो वर्चो अद्वा विघ्नसः सम्भरण त्रयो विघ्नसो योनिश्चतुर्विघ्नसः गर्भाः पञ्चविघ्नस ओजस्त्रनवक्रतोरेकत्रिघ्नस प्रातिष्ठा त्रयस्त्रिघ्नसो ब्रध्नस्य विष्टपञ्चतुस्त्रिघ्नसः नागषट्त्रिघ्नसो विवर्तोऽष्टाचत्वारिघ्नसो धर्त्रं च दुष्टोमः अग्नेर्भागोऽसि दीक्षाया आधिपत्यं ब्रह्मस्पृतं त्रिवृस्तोमः इन्द्रस्य भागोऽसि विष्णोराधिपत्यं क्षत्रज्ञस्पृतं पञ्चदशस्तोमः नृचक्षसां भागोऽसि धातुराधिपत्यं जनित्रज्ञस्पृतज्ञ सप्तदशस्तोमः मित्रस्य भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यं दिवो वृष्टिर्वातस्पृत एकविघ्नसस्तोमः वसोऽनां भागोऽसि रुद्राणामाधिपत्यं चतुष्पात् स्पृतं चातुर्विघ्नसस्तोमः आदित्यानां भागोऽसि मरुतामाधिपत्यं गर्भाः स्पृता पञ्चविघ्नसस्तोमः अदितेर्भागोऽसि पूष्ण आधिपत्यमोजस्पृतन्त्रेण वस्तोमः देवस्य सवितुर्भागोऽसि बृहस्पतिराधिपत्यज्ञ समेचेर्दिश स्पृताश्चतुष्टोमस्तोमः यवानां भागोऽस्य यवानामाधिपत्यं प्रजास्पृताश्चतुश्चत्वारिघ्नसस्तोमः भोडां भागोऽसि विश्वेषां देवानामाधिपत्यं भूतज्ञस्पृतं त्रयस्त्रिघ्नसस्तोमः सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिका ऋतो अग्निरन्धश्लेषोऽसि कल्पेतां यावाः पृथिवे कल्पं तामाप ओषधय कल्पं तामग्नयः प्रथमम ज्येष्ठ्याय सौरदाः ये अग्नयः समानसोऽन्तराद्या वा पृथिवे इमे हैमन्तिकारतो अभिकल्पमाना इन्द्रामिव देवा अभिसंवेशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवे सेदतम्
एकयास्तवत प्रजाधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासेत् तिस्रभिरस्तवत ब्रह्मा सृज्यत ब्रह्माणस्पतिरधिपतिरासेत् पञ्चभिरस्तवत भूतान्यसृज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासेत् सप्तविंशत्यास्तवत यावा पृथिवे वेदां वसवो रुद्रा आदित्या अनुव्या यज्ञस्त एवाधिपतय आसन् पञ्चभिरस्तवत भूतान्यसृज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासेत् सप्तभिरस्तवत सप्तर्षयो सृज्यन्त धाताधिपतिरासेत् नवभिरस्तवत पितरो सृज्यन्ताधितिरधिपत्न्यासेदेकादशभिरस्तवत ऋतवो सृज्यन्तार्तवा अधिपतय आसन् त्रयोदशभिरस्तवत मासा असृज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासेत् पञ्चदशभिरस्तवत क्षत्रमसृज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासेत् सप्तदशभिरस्तवत ग्राम्या पशवो सृज्यन्त बृहस्पतिरधिपतिरासेत् नवदशभिरस्तवत शूद्रार्या सृज्येतामहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम् एकविंशत्यास्तवतैकशफा पशवो सृज्यन्त पूषाधिपतिरासेत् एकविंशत्यास्तवत द्यावा पृथिवे वेदा वसवो रुद्रा आदित्या अनुव्या यज्ञस्त एवाधिपतय आसन् एकविंशत्यास्तवतैकशफा पशवो सृज्यन्त वरुणाधिपतिरासेत् त्रयोविंशत्यास्तवत क्षुद्रा पशवो सृज्यन्त पूषाधिपतिरासेत् पञ्चविंशत्यास्तवतारण्या पशवो सृज्यन्त वायुरधिपतिरासेत् सप्तविंशत्यास्तवत द्यावा पृथिवे वेतां वसवो रुद्रा आदित्या अनुव्या यज्ञस्त एवाधिपतय आसन् नवविंशत्यास्तवत वनस्पतयो सृज्यन्त सोमोऽधिपतिरासेत् एकत्रिंशतास्तवत प्रजा सृज्यन्त यवाश्चायवाश्चाधिपतय आसन् त्रयस्त्रिंशतास्तवत भूतान्यसाम्यन् प्रजापतिः परमेष्ठ्यधिपतिरासेत् लोकं प्रणता अस्येन्द्रं विश्वाः अग्नः जातान् प्रणोदानः सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्वा अधेना ब्रह्मि सुमना लग्गस्तवश्यामशर्मग्गस्त्रिवरोध उद्भौ सहसा जातान् प्रणोदानः सपत्नान् प्रत्यजातान् मुदजातवेदः अधेनो ब्रूहि सुमनस्य मानो वयज्ञस्यामप्रणोदानः सपत्नान् षोडशे स्तोम ओजो द्रवेणं चतुश्चत्वारिज्ञसस्तोमो वत्सो द्रवेणम् अग्नेः पुरेशमस्यप्सो नामतां त्वा विश्वे अभिगृह्णन्तु देवाः स्तोमा पृष्ठा घृतवती हसेद प्रजावदस्मै द्रविणाय जस्वा एवश्चन्दो वरेवश्चन्दः सम्भोश्चन्दः परिभोश्चन्दः आच्छन्दो मनश्चन्दो व्यचश्चन्दः सिन्धुश्चन्दः समुद्रश्चन्दः सरिरञ्छन्दः गगुप्छन्दस्त्रिगगुप्छन्दः काव्यञ्छन्दो
अङ्कुपञ्छन्दाः अक्षरापङ्क्तिश्छन्द पदपङ्क्तिश्छन्दो मिष्टारपङ्क्तिश्छन्दक्षरो ब्रजच्छन्दाः आच्छन्द प्रच्छन्द संयच्छन्दो वियच्छन्दाः बृहच्छन्दो रथन्तरञ्छन्दो निकायश्छन्दो निवदश्छन्दाः यरश्छन्दो ब्रजश्छन्दश्चनुष्टुप्छन्दो नुष्टुप्छन्दाः एवश्छन्दो वरेवश्छन्दो वयश्छन्दो वयस्कृच्छन्दाः निष्पर्धाच्छन्दो विशालञ्छन्दश्चतिश्छन्दो दोरोहणञ्छन्दाः तन्द्रञ्छन्दो अङ्काङ्कञ्छन्दाः. பக்தர்களே, தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருப்பது தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருவாங்கல்யங்களுக்கான பூஜை. இதோ ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமகளான இந்த தாயாரே எம்பெருமானுக்கு புருஷகாரமாக விளங்குபவள். இந்த புருஷகாரம் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்? அதாவது புருஷனாக நடந்து கொள்ளாதவரை திருத்தி உண்மையான புருஷனாக்கி அவரை அந்த எம்பெருமானிடம் அனுப்புவது. அதாவது நேராக எம்பெருமானை அணுக முடியாதபடி அவனது பாபங்கள் அவனை தடுக்கின்றனவாம். பிராட்டி ஒரு தாயைப் போல தன்னுடைய உபதேசத்தாலும் அன்பினாலும் திருத்தி அவனது பாபங்களை தனது திருவருளால் போக்கி எம்பெருமானை நெருங்க வைக்கிறாளாம். ஜீவாத்மா என்கிற புருஷனை உண்மையான புருஷனாக நல்ல தன்மை உடையவனாக ஆக்குகிறபடியால் தான் தாயார் புருஷகாரம் எனப்படுகிறாள். அதே போல வேண்டியவற்றை அள்ளித்தரும் எம்பெருமானையும் அண்டி வரும் அந்த பக்தர்களின் குற்றங்களை பாப்பங்களை கண்டு எங்கே கோபமுற்று தள்ளிவிடுவாரோ என்று தாயார் தன்னுடைய பக்தியாலும் பேரன்பினாலும் எம்பெருமானின் சீற்றத்தை முற்றிலுமாக நீக்கி அவரை அருள் புரிகிற புருஷராக மாற்றுவதாலும் புருஷகாரமாக கொண்டாடப்படுகிறாள். லக்ஷ்மிஹி புருஷகாரத்வே நிர்திஷ்டா பரமர்ஷிபிகி என்கிறது சாஸ்திரம். இவ்வாறாக பக்தர்களுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக பிராட்டி செயல்படுகிறாளாம். பக்தர்களே, அதோ தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்து கன்னியாதான நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. பிள்ளைகளான நாம் செய்யும் தவறுகளை எல்லாம் ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு நாம் எப்போதோ செய்த நல்ல காரியங்களை மட்டும் எம்பெருமானிடம் எடுத்துச் சொல்லி அவரிடம் நம்மை சேர்க்காளாம் தாயார். இதைத்தான் ஸ்ரீ வெங்கடேச பிரபத்தியில் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே ஈசானாம் ஜகதோஸ்ய வெங்கடபதேர் விஷ்ணூர் பராம் பிரேயசீம் தத்வக்ஷஸ்தல நித்யவாச ரசிகாம் தக்ஷாந்தி சம்வர்தினிம் பத்மாலங்கரத பாணிபல்லவ யுகாம் பத்மாசனஸ்தாம் ஸ்ரீயம் வாத்சல்யாதி குணோஜ்வலாம் பகவதீம் வந்தே ஜெகன்மாதரம் என்று ஸ்ரீ வெங்கடேச பிரபத்தியில் முதல் ஸ்லோகமாக தாயார் செய்யும் இந்த உபகாரத்தை நாம் போற்றுகிறோம். பாகவதோத்தமர்களின் இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் விஷ்ணு பிரியரான ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கு இந்த திருச்சானூரில் எல்லா நாட்களுமே விசேஷந்தான். ஆனாலும் மாதத்தில் ஸ்ரீபஞ்சக தினங்கள் என்று போற்றப்படும் அமாவாசை, பௌர்ணமி, பஞ்சமி, பூரம், உத்திரம் ஆகிய தினங்களில் வெண்தாமரை புஷ்பங்களால் அர்ச்சிக்கப்படுவது மிகவும் விசேஷமான ஒன்றாகும். தாயாரின் அந்த பத்ம கமலங்களை நாம் பக்தியுடன் பற்றினால் தாயார் அக்கறையோடு நம்மை இந்த சம்சார கடலிலிருந்து கடை தேற்றி அக்கறையில் சேர்ப்பார் என்கிறார் ஸ்ரீஸ்துதியில் சுவாமி தேசிகன். லக்ஷ்மி கடாட்சம் என்பார்கள் அதை. தாயாரின் திருக்கண்களின் பார்வை எங்கெல்லாம் படுகிறதோ அங்கெல்லாம் செல்வம் கொழிக்குமாம். रोचन रोचमान शोभन शोभमान कल्याण.
सरसिजमुखी सारस नयने सरसिजमुखी सारस नयने सरसिजमुखी सारस नयने सरसिजमुखी सारस नयने सफल मनोरथ साधन शुभदे 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 सरसिजमुखी सारस नयने हरिवक्षस्थल स्थिर निवासिनी ज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्माग्नश्च शुक्रश्चार्यतापाश्चात्यग्नः हेद्रञ्च अन्याद्रञ्च सद्रञ्च प्रते सद्रञ्च मितश्च सम्मेतश्च सभाराः ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च अन्ते मित्रश्च दूरे अमित्रश्च गणः
ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विधारयः ये दृक्षास एतादृक्षास ओषुणः सदृक्षास प्रते सदृक्षास एतन मितासश्च सम्मेतासो नो अद्य सभारसो मरुतो यज्ञ अस्मिन् स्वता वाग्नश्च प्रघासे च शान्तपणश्च गृहमेधि च क्रीडे च शाके च उद्येषि इन्द्रं देवेर्विशो मरुतो नो वर्त्मानो भवन्यथेन्द्रं देवे विशो मरुतो नो वर्त्मानो भवन् एवमिमं यजमानं देवेश्च विशो मानुषिश्चानो वर्त्मानो भूयासुः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानि ददे पदं समूढमस्य पागुं सुरे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा అవతరించిన
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ